سے پہلے کہ میں میاں صاحب کو دعوت دوں، تمام ہمارے درمیان جو معزز خواتین و حضرات موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ نام لوں گا تو کسی کا نام رہ جائے گا تو پھر وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، اس لیے میں تہہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ آئے۔ اب میں محترم وزیر اطلاع جناب میاں شمس حسین صاحب کی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آپ کے لیے ٹائم کی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میزبانوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور آپ تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ ایسے مصروفیات میں اور پھر ایسے ملک میں کہ وہاں پہ وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ لوگ یہاں پہ آئے، میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرف اشارہ کیا گیا، شاید دہشت گردی کے حوالے سے زیادہ آپ لوگ جو ہے ذہن میں اس کے لیے ایک سوچ بھی رکھتے ہیں اور ایک ملک کے لیے خطرہ بھی ہے۔ ایک تو دہشت گردی کی ڈیفینیشن کی گئی، سیدھی سادھی ڈیفینیشن ہے کہ فطرت کے اگینسٹ کوئی بھی کام ہو وہ دہشت گردی ہے۔ آپ اس زمرے میں جہاں کہیں بھی دیکھیں تو معمولی پیمانے پہ بھی فطرت کے خلاف کوئی کام ہو تو وہ رفتہ رفتہ ایک بڑی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور وہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے زمرہ میں آتا ہے۔ لیکن یہ تو ایک فلسفی کے حوالے سے بات کی جا سکتی، عملاً کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ آپ لوگ زیادہ معلومات رکھتے ہیں اور آپ باخبر بھی ہیں، اور ہم تو ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہوئے محدود پیمانے پہ اپنے معلومات ہمارے ہیں، آپ لوگوں کے تو دنیاوی سطح پہ معلومات ہیں، لیکن ہم پہ جو گزری ہے ہم وہی بات بتا سکتے ہیں۔ ٹیررزم وہاں پہ کیسے آئی، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب سرد جنگ گرم جنگ میں تبدیل ہوئی اور افغانستان میں رشیا آیا تو رشیا کو روکنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کے نام پہ وہاں پہ جہاد کا آغاز کیا اور افغانستان سے آئے ہوئے مہاجروں کو مجاہد بنایا، مجاہد کے بعد طالبان بنایا، اور اس میں بہت عرصہ لگا اور ان کو ٹرین بھی کرتے رہے اور جدید اسلحہ بھی دیتے رہے۔ اور اس وقت ہمارے فخر افغان باچا خان فرمایا کرتے تھے کہ یہ کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں، یہ دو سپر پاور کی لڑائی ہے، اور ہم جیسے لوگ اس میں ٹانگ اڑائیں گے تو ہم ہی مار کھائیں گے۔ لیکن لوگوں نے اس کو جہاد قرار دیا، اور پھر فخر افغان باچا خان نے کہا کہ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے۔ کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی اس وقت۔ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، وہی تو وقت تھا کہ ہم اسی وقت یہ بات محسوس کرتے۔ اگر آج ہم جتنے فکر مند ہیں اس کے نسبت ہم 10% بھی فکر مند ہوتے تو شاید یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، لیکن لوگوں نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی، اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ جنگ تو افغانستان ہی میں لڑی جا رہی ہے، خون بہے تو بہے، ہمارا کیا؟ اور ہم بے پرواہ ہو کے اسی وقت ولی خان صاحب نے کہا کہ آپ جس کے گھر میں بم بھیجیں گے تو وہاں سے پھول نہیں آئیں گے۔ اس پہ بھی لوگوں نے تانے دیے، لیکن آج وہ جنگ افغانستان سے ہو کے پاکستان آیا، اور بہت مختصر سی تاریخ میں تو 30-35 سال اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ ہر ایک کو یاد ہوگا یہ سارا قصہ، اور ضیاء الحق کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ہمارے پرامن ذہن کو پرتشدد بنایا جائے۔ اس پہ بہت کام کیا گیا، اور ہمارے اسکولوں کے سلیبس کو تبدیل کیا گیا۔
गैर महसूस तरीके से कि हम ये समझते रहे कि इस्लाम की खिदमत हो रही है, पाकिस्तान की बका की खिदमत हो रही है और हमारी मुस्तकबिल को संवारा जा रहा है। और रशिया जो है वो एक बड़ा ख़तरा है, उस ख़तरे को रोकने के लिए हम ये कुर्बानी दे रहे हैं। और सिलेबस में हम आप सब जानते हैं कि बे से बकरी हम पढ़ा करते थे, लेकिन बे से अब बंदूक लोग पढ़ते हैं। किसी ने तवज्जो नहीं दी कि बकरी से बंदूक कैसे बना। हम ते से तख्ती पढ़ा करते थे, आज ते से तलवार है। तो बड़े साइंटिफिक तरीके से हमें तशद्दुद की तरफ धकेला गया। हम पुरअमन लोग थे, पुरअमन लोग हैं। हम पे इन्वेस्टमेंट किया गया बैनुल-अक़वामी मफादात की खातिर और इलाकाई मफादात की खातिर हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और हमारे जहनों को पुरतशद्दुद बनाया गया। 35 साल गुजरने के बाद अब जो सूरत हाल है, उसी सूरत हाल को अगर हम अपने सामने रखें, क्योंकि आप लोग इस हवाले से एहसास इसलिए हैं कि जब अपनी धरती से लोग दूर हो तो मोहब्बत ज़रा ज़्यादा हो जाती है, फ़िक्र भी ज़्यादा लाहक हो जाता है। लिहाजा मुझे एहसास है कि आप हमसे ज़्यादा मुल्क से मोहब्बत भी रखते हैं और आपकी हिस्स भी हमसे ज़्यादा हैं और दर्द भी ज़्यादा महसूस करते हैं। लिहाजा मैं जब आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ तो मुझे खुशी महसूस हो रही है कि हम जिस आग में जल रहे हैं उसकी तपिश आप हमसे ज़्यादा जो है महसूस कर रहे हैं। अगर ये ना होता तो फिर बड़ा दुख होता कि अपने ही मुल्क के बासी हमारे दर्द से भी वाकिफ़ नहीं हैं, जो हम जल रहे हैं वो जलने से भी वाकिफ़ नहीं है। तो इस पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो दर्द पाकिस्तान में हम महसूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपके दिलों में वो दर्द है। और क्यों नहीं होगा कि आप जहाँ पे रहते हैं तो देश की कीमत तो आप लोगों को पता है, मुल्क की कीमत का तो आप लोगों को पता है, आज़ादी का भी आप लोगों को पता है। और जब ऐसे मुल्क में लोग बसते हैं कि हर तरफ खुशी खुशी नज़र आती है तो दिल रोता है कि कहीं हमारी सरज़मीन को क्या नज़र लग गई कि वहाँ पे खुशी के कोई असरात ही नहीं हैं। लिहाजा बिल्कुल आप लोगों ने जिस एहसासात का इजहार किया मुझे दिली खुशी महसूस हुई। दहशतगर्दी के ख़त्म होने के हवाले से आप बात करते हैं। दहशतगर्दी जब हमारी हुकूमत बनी तो हमने तरीका अपनाया कि दहशतगर्दी को कैसे एड्रेस किया जाए। दहशतगर्दी तो अपने उरूज पे पहुंच चुकी है, अब वो वक्त हमारे हाथ से निकल गया है कि इसको बिल्कुल उसी तरह ख़त्म किया जाए कि पहले था। अब तो है, जब है तो किस तरीके से इसका सामना किया जाए। तो हमने सबसे पहले मुज़ाकिरात की बात की और हम आज भी उसी मकाम पे खड़े हैं कि कोई भी मसला गोली से हल नहीं होता, मुज़ाकिरात ही हर मसले का हल है। और आज भी हम कहते हैं कि मुज़ाकिरात होने चाहिए। लेकिन जब हमने मुज़ाकिरात की बात की तो अमेरिका भी उसकी मुखालिफत में था और हमारे पाकिस्तान के मुक़्तदर क़ुव्वतें भी मुज़ाकिरात के मुखालिफ थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से तो बस निमटना ही है, इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी है। और फिर वहाँ पे एक वावेला मचा सिविल सोसाइटी का, और मीडिया भी खुदा के फजल करम से अब काफ़ी तवाना हो चुका है। तो मीडिया पे आना और फिर हमारे खिलाफ एक मुसलसल प्रोपेगंडा कि ये लोग दहशतगर्दों से मुज़ाकिरात कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारी सोच है, हम अदम तशद्दुद के लोग हैं, हम तशद्दुद नहीं चाहते। एक बार हमें सियासी अंदाज में इस मसले को एड्रेस करने दीजिए। लिहाजा हमने बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को बशमूल अमरीका उनको भी इत्मीनान में लिया और अपने मुल्क के अंदर क़ुव्वतों को भी इत्मीनान में लिया। और उसके बाद हमने मुज़ाकिरात किए। चूँकि मैं ख़ुद मुज़ाकिराती टीम का मेंबर था तो सुनने में या टीवी पे देखने में और अमलन करने में बड़ा फ़र्क होता है। अफरासियाब खटक साहब भी इस मुज़ाकिरात के वो मेरे इस टीम के जो थे वो सरबराह थे। हम दो ही
रुकनी कमेटी जो मुज़ाकिराती टीम थी, पार्टी और हुकूमत ने तश्कील दी। आप अंदाज़ा करें कि मुज़ाकिरात किस चीज़ को कहते हैं कि जब हमें हेलीकॉप्टर में बिठाया गया तो वो गन शिप हेलीकॉप्टर था। हम सियासी लोग, आम से लोग जब गन शिप हेलीकॉप्टर में बैठे तो बंदे को एहसास होता है कि मैं तो लड़ने के लिए जा रहा हूँ, और फिर यह एहसास कि किसी वक्त भी मिसाइल इसको टारगेट कर सकता है, इसको हिट कर सकता है। फिर उन पहाड़ों के बीच में जाना, कोई हाथ से पत्थर फेंक के तो हेलीकॉप्टर को लगे, तो मिसाइल जो कि अमलन वहाँ पे दहशतगर्दों की हुकूमत थी। इसी अंदाज में हम सवाद गए, और जब हम मुज़ाकिराती जगह पे बैठे तो मेरे पीछे भी खुदकुश खड़ा था, अफरासियाब खटक के पुष्ट पे भी खुदकुश खड़ा था, और दरवाजे में भी एक खुदकुश खड़ा था कि हम बात करें तो किसी वक्त उनका मूड ख़राब हो तो हम नहीं होंगे। ये मुज़ाकिरात जो हम करने जा रहे थे, और फिर उनके हाथ में बंदूक, ग़िज़वान एक कमांडर है, आज भी वो जिंदा है, उसके हाथ में एक बंदूक की नाली भी हमारी तरफ। और फिर बात तो मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि हमने किस अंदाज में मुज़ाकिरात किए। वो बड़े दबदबे में बोले और वो हमें कहते रहे कि आप लोगों ने इंसानों का खून बहाया, और आप अपने आप को कैसे पश्तून कहते हैं कि आपकी हुकूमत में हमारा खून बह रहा है। मुज़ाकिरात में ताना दिया। तो मैंने खटक साहब से कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो इससे ज़रा मैं बात कर लूँ तो ये मुनासिब रहेगा। तो मैंने उससे कहा कि हुकूमत हमारी, पुलिस हमारी, फ़ौज हमारी, लेवी हमारी, अगर हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें तो फ़ौज, पुलिस और लेवी करेगा, तो या उसमें कोई मरेगा या आप में मरेगा। हम तो हुकूमत करते रहेंगे जिस तरीके से होता चला रहा है। अगर हमारी ख्वाहिश न होती कि खून बंद हो तो हमें क्या पड़ी थी कि हम आके मुज़ाकिरात करें। आपका ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। और हमने उनसे ये कहा कि खून बंद हम करना चाहते हैं, आप लोग जानवर बन चुके हैं कि जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं, बात करने का सलीका सीखो, और बात करो तो उस अंदाज से करो कि जिस अंदाज से इंसान बात करता है। वरना जिस धरती के तुम बैठे हो उस धरती के मैं भी बैठा हूँ, और जिस जुबान की आप बात करते हो उस जुबान का बोलने वाला मैं भी हूँ। न किसी नुक्ते से डरूंगा, न आपके बातों में आऊँगा, वही कुछ कहूँगा जो मेरे मुल्क की भलाई में हो और हमारी धरती के भलाई में हो। आप यकीन करें कि 10-15 मिनट के बाद उसका लहजा तब्दील हुआ, और वो फिर उसी तरीके से बोलने लगा जिस तरीके से बोलना चाहिए। तो एक इब्तिदा थी। फिर मुज़ाकिरात का आगाज़ हमने किस नुक्ते से किया कि फ़ौज अपने लिए वहाँ पे खुराक, राशन के लिए उनके लिए रास्ता नहीं था कि राशन ले जा सके। आप ज़रा ये नुक्ता जो मैं बयान कर रहा हूँ इसके कि जब फ़ौज अपने लिए खुराक न ले जा सकता हो तो हुकूमत किसकी है। बातें बनाना और बातें सुनना वो तो हर एक कर सकता है, लेकिन जहां हम थे वहां फौज अपने लिए सप्लाई नहीं कर सकता था। बज़ोर शमशीर तो कर सकता था लड़ाई की, लेकिन अमन के हवाले से यानी पुरअमन तरीके से वो नहीं ले जा सकते थे। जब फौज हरकत नहीं कर सकती थी अमन पुरअमन तरीके से, तो हम क्या थे और इंसान क्या थे या आम लोग क्या थे। यानी स्वात मलकन डिवीजन में अमलन जो है वो दहशतगर्दों की हुक्मरानी थी। वो वक्त वही वक्त था जो कि औरतों को कोड़े मारे जा रहा था, बंदों को ज़बह करके चौक पे लटकाया जा रहा था, अपनी अदालतें कायम करके खुद सजाएं दी जा रही थी। एक बंदा जिसको कसाब कहा करते थे उसने 100 बंदों को ज़बह किया, उसके लिए एजाज था कि मैंने इंसानों को ज़बह किया। वो वहशत, वो दहशत कि वो लोग कारोबार करना बंद, और वहाँ पे एक डर का सा समा था जो हमने आगाज़ किया। और इब्तिदा में हमें ये कामयाबी मिली कि हमने उनसे ये इजाज़त ली और उनको राज़ी किया कि फ़ौज के लिए राशन जाना चाहिए। ये नुक्ते आगाज़ था कि हम वहाँ पे हरकत करें
अपनी फ़ौज के लिए खुराक ले जा सके और वो अपनी पोजीशन जो है अच्छे तरीके से संभाल सके। और फिर हमने मुज़ाकिरात के ज़रिए उनके तमाम मुतालिबात माने। कोई भी ऐसा मुतालिबा नहीं था जो हमने नहीं माने, और हमारे लोग इस पे उदास थे, ख़ासकर जो यहाँ पे बात की गई कि हम तो सेकुलर हैं। उनका मुतालिबा तो शरई निज़ाम अदल था। तो इतना वावेला मचाया गया कि अब तो सारा कुछ समंदर भी उल्टा बहने लगा। लेकिन हिकमत भी कोई चीज़ होती है, जहाँ पे मेरी फ़ौज हरकत न कर सके तो बातें तो बहुत कुछ कहा जा सकते, लेकिन अगर मैं भी डट के बात करता तो अंजाम क्या होता। तो हमने कहा कि हमें शरई निज़ाम अदल कबूल है। मैं आज आपसे कहता हूँ कि शरई निज़ाम अदल अमलन क्या है, वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन से किसी तौर अगेंस्ट नहीं है। तो अगर नाम पे वो खुश हो तो ये तो हिकमत की बात है कि हम 73 कॉन्स्टिट्यूशन मलक्कन डिवीजन में राइज भी करें और उनको खुश भी कर दें। इसमें क्या कबाहत थी काजी कोर्ट्स बनाना। लेकिन चूंकि हकीकत से लोग आगाह नहीं थे, उनको एतमाद में उस वक़्त लेना भी बड़ा मुश्किल था। मैं तो तकरीबन हर रोज़ मीडिया पे आता रहा और जो मेरा फरीज़ा था मैं निभाता रहा। शायद मेरा मुंह जो था वो छोटा था, या मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं थी कि मैं सारी दुनिया को वो ख़बर देता या उनको एतमाद में लेता, लेकिन मैं हर रोज़ कोशिश करता रहा और आखिरकार हमें उसमें किसी हद तक कामयाबी मिली। खुदा का करना कुछ और था। दहशतगर्दों ने मुज़ाकिरात के मानने से इनकार किया और हमने कार्रवाई की। कार्रवाई के नतीजे में 25 लाख IDPs आए। 25 लाख, तारीख में कभी इतने IDPs नहीं बन के आए और न इतने मुख्तसर वक्त में वापस गए। मैं वहाँ पे जब ये IDPs बन के आए तो हम वहाँ पे गए कि उनको देखें। तो देखते वक्त एक औरत मुझसे कहने लगी कि बेटा, शदीद गर्मी थी, यहाँ तो गर्मी का एहसास भी नहीं होता, गर्मी में भी सर्दी होती है, लेकिन वहाँ पे जब शिद्दत की गर्मी हो तो फिर वो जब सिर पे छत भी ना हो तो आप अंदाज़ा करें, और अच्छे भले घरों से लोग आए और फिर खुले मैदान में रहे तो क्या पोजीशन होती है। तो मुझे कहते हैं कि बेटा, न मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, न खाने के लिए रोटी चाहिए, न सर छुपाने के लिए छत चाहिए। मुझे तो एक बात चाहिए कि मैंने अपने घर के अफराद से, मर्दों से चुप के अपने जेवर उतारे और इन दहशतगर्दों को चंदे में दिए कि ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने बंदूक खरीदी और मेरे बेटे के सीने को चलनी किया। तो मुझे एक ही चाहिए कि आप दहशतगर्दी ख़त्म कर दें। तो मैंने उनसे कहा कि माँ, मैं आपसे ये वादा ज़रूर करता हूँ, मैं बड़ा छोटा बंदा हूँ और ये बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर आपसे ये वादा करता हूँ कि ज़िंदा रहूँ तो ज़िंदगी के आखिरी हद तक मैं इनसे लड़ता रहूँगा, और मैं आपको ये नवीद ज़रूर सुनाऊँगा। अगर ज़िंदा रहा तो मलक्कन डिवीज़न से इन दहशतगर्दों का खात्मा करके दिखाएंगे। और खुदा ने वही किया। वहाँ पे सब कुछ लौट के आया। फ़ौज ने बड़ी ईमानदारी से कार्रवाई की। बहुत सवाल उठते हैं, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि जब हक़ाइक़ हो तो हक़ाइक़ को तस्लीम भी करना चाहिए। हमने मलक्कन डिवीज़न में सियासी हिकमत अमली अपनाई तो पुख्तूनों की हिस्ट्री की मैं बात करूँगा, इस मंतके की नहीं, कि पुख्तूनों की 4500 साल मालूम हिस्ट्री में जब भी कोई इस्लाम के नाम पे उठ खड़ा हुआ है तो उसने लोगों के गले काटे हैं, लेकिन उससे लोगों ने मोहब्बत की। यानी इस्लाम के नाम पे हमेशा हमें ज़बा किया गया। और इस बार जब उन्होंने इस्लाम का नाम लिया तो हमने सियासी हिकमत अमली की बुनियाद पे उनका चेहरा बेनकाब किया। ये 4500 साल में पहली दफ़ा हुआ कि लोगों ने इस्लाम लेने वालों के जो नाम लेते थे उनसे नफरत की। और इससे कबल जो फौज उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे तो फौज से लोग नफरत करते थे। हमारी हिकमत अमली और मुज़ाकिरात के बाद लोग जब फौज कार्रवाई करती तो फौज से लोग मोहब्बत करते। फौज का बंदा मरता तो उसको शहीद कहते
اور دہشت گردوں کا بندہ مرتا تو اس کو مرا ہوا یا اس سے بھی کوئی کم لفظ آپ ڈھونڈے تو وہ لوگ کہا کرتے تھے. یہ ہماری سیاسی حکمت عملی تھی کہ سیاستدانوں نے وہاں پہ کر کے دکھایا. اور اس کے بعد فوج نے ہم سے ایک بات کی, یہ بھی پتے کی بات ہے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے, لیکن میں خود بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ایک فریضہ ہے. فوج نے ہم سے بات کی کہ آپ اس کارروائی کو آن کریں گے, اگر آن کریں گے تو ہم کارروائی کریں گے. تو آن کرنے کی تو قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے, آن تو صرف زبان سے نہیں ہوتا. ہم نے ان سے کہا کہ بالکل آپ کی کارروائی کو آن کریں گے, اور جہاں جہاں بھی فوج کا خون بہا وہاں وہاں عوامی نیشنل پارٹی کا خون بہا. ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے جب ایک بار ان سے کہا کہ ہم آن کرتے ہیں تو ہم نے آن کیا. اور ان سے میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ فوج نے بڑی ایمانداری سے ملکنڈ ڈویژن میں آپریشن کیا, بڑی ایمانداری سے کارروائی کی. ہم نے میجروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے کیپٹن کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. 2 دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں خود موجود تھا کہ جو یہ لڑائی ہو رہی تھی. پیر بابا کے مقام پہ میں موجود تھا کہ آر پار دونوں کراس فائرنگ تھی, اور اسی فائرنگ میں ہماری فوجی جوان بھی شہید ہوئے اور کچھ دہشت گردوں کو بھی انہوں نے ٹکانے لگائے. لہذا فوج کی اس کردار کو جو کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف ہو, اور پھر وہ جمہوریت کو سپورٹ کرے, اور پھر وہ پارلیمنٹ کو سپریم سمجھے, تو پھر ہمیں تو کم سے کم جو فوج مارشل لا لگائے, جو آپریشن نہ کرے, جو پارلیمنٹ کو سپریم نہ سمجھے, تو اس کردار کی اگر مخالفت کی جائے تو اس کی سمجھ آتی ہے. لیکن اگر جب وہ پارلیمنٹ کو بھی سپریم سمجھے, مارشل لا بھی نہ لگائے, جو عمل نہیں لگایا گیا, بڑا بہت سارے عوامل اور بھی ہیں, لیکن ایک یہ بھی تھا کہ اگر وہ لگاتے تو بہت مواقع ان کے ہاتھ اس دوران لگ چکے تھے اور انہوں نے کارروائی بھی کی. لہٰذا اس کردار کو, اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ فوج اس کردار کو نبھاتا رہے, شوقاً خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کی یہ پروفیشنل کردار, یہ پیشورانہ کردار رہنا چاہیے, اور جب ہماری اپنی فوج ہے, اس دھرتی کی فوج ہے, وہ پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے, تو پھر تو ہمیں اس کا ساتھ ضرور دینا چاہیے. پھر جو ہے مذاقاً یا گپ شپ میں یا شوق میں مخالفت جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. بڑے نپی تلی جو ہے ہمیں بات کرنی چاہیے, اور پھر ملک جب بدیس ہو تو اس میں تو مزید جو ہے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا یہ کارروائی تو ہوئی, لیکن خوش قسمتی کہ دہشت گردی جب امریکہ وہاں پہ تورا بورا کا مقام آیا اور انہوں نے وہاں پہ سب کچھ کیا, تو لوگ وزیرستان آئے, ازبک, عرب, تاجک, چیچن, یعنی بین الاقوامی دہشت گرد ہماری سرزمین پہ آئے. وہاں سے سب کھیل ہونے لگا. 9/11 ہوا, 9/11 ہوا تو پالیسی تبدیل ہوئی. 9/11 سے قبل ہم چیخ رہے تھے کہ خود یہ دہشت گرد ہیں, دنیا ہمارے ساتھ نہیں مان رہی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے. ہم مرتے رہے, ہم کٹتے رہے, ہم اس کا مقابلہ کرتے رہے. 9/11 ہوا تو دنیا کو احساس ہوا کہ اس دہشت گردی کو اب ختم کرنا ہے. اور اس کے بعد امریکہ کا جو کردار رہا یہی کردار ہونا چاہیے, چونکہ انہوں نے تو مفادات کی بنیاد پہ اس کی مخالفت کی, ہم نے شعوری طور پہ دہشت گردی کی مخالفت کی. اور ہم یہی امریکہ سے توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے وہ ہر جگہ پہ دہشت گردی کی مخالفت کرے گا اور اسی کردار کو آگے لے کے جائے گا. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو آپ چونکہ میرے بڑے بیٹے ہیں, جب پاکستان کی بات ہو, دنیا میں طاقتور کی بات ہو, تو پھر شوق کے مارے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ میں سپر پاور کے ساتھ دیکھوں گا, لڑکے دیکھوں گا. بابا اپنی ملک کو تو سنبھال کے دیکھ, اپنے ملک کی فکر کر. اب اگر دنیا میں ہماری ہی وجہ سے امریکہ واحد سپر پاور بنا ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے بگاڑ نہ پیدا کریں, ہم اس سے اچھے تعلقات رکھیں. اور اچھے تعلقات کس بنیاد پہ رکھیں کہ پاکستان کی مفاد کو اول سمجھیں,
पाकिस्तान की मफाद की अवलियत को अहमियत दें, अपनी मफादात पे सौदाबाजी न करें और अमेरिका समेत सारी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात कायम करें। ये हमारी दुनियावी नजरिया होना चाहिए और मुल्क के अंदर जो है वही कुछ जो मैंने इससे कबल कहा। अब दहशतगर्दी का खात्मा कैसे होगा? बहुत आसान सा फार्मूला है, अगर कोई इस पे अमल करे तो। ये अब हमारी बस की बात नहीं है। जब दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी हो और कोई मुझसे कहे कि आप खत्म करो तो कैसे? आप लोगों ने कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, हमारी जंग नहीं थी। जब हमने गलती की तो जंग हमारी हुई, हमारी सरजमीन पे लड़ी जा रही है और हम ये कहें हमारा नहीं है तो फिर हिफाजत कौन करेगा? हम रास्ते खुले छोड़ दे, हमारी नहीं थी, हम पे तोंपी गई और अब हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। और जब ये जंग हम लड़ रहे हैं तो इसके लिए सीधा साधा फार्मूला है कि अमेरिका आज कतर में मुज़ाकरात अकेले में कर रहा है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान अकेले में मुज़ाकरात करेगा ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। अफगानिस्तान अकेले में मुज़ाकरात करेगा ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर इसको कामयाब बनाना है और ये संजीदा है तो हम तो इस फोरम से ये कहेंगे खुदारा अब संजीदगी इख्तियार करो। जितना खून बहा है वो काफ़ी है, अब मज़ीद खून न बहाया जाए और अपनी मफादात को गिव एंड टेक की बुनियाद पे बात की जाए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपनी मर्जी की वहाँ पे जो है मुज़ाकरात करे, पाकिस्तान अपनी मर्जी की करे, अफगानिस्तान अपनी मर्जी की करे। तो मर्जी की जब बात होगी तो अब ये जंग हमारी तीनों, हम मेन प्लेयर्स हैं, हमें अपने आपस में मिल बैठना है, अदम एतमाद की फ़िज़ा को ख़त्म करना है, एक दूसरे को एतमाद में लेना है, मुज़ाकरात का एजेंडा तय करना है और हम एक सेम पेज पे हो के मुज़ाकरात के लिए कदम बढ़ाएं। और उस तरफ से दहशतगर्द अपनी खुद मुख्तियार टीम का ऐलान कर दे। ऐसा नहीं है कि हम किसी रास्ते में चलते हुए तालिब को पकड़ें और बाद में वो कहे मैं तो मुला उमर नहीं था। हम मुज़ाकरात करते रहे, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है, मुज़ाकरात होते रहे, लोग खुश थे, आखिर में पता चला कि वो तो तालिबान का नुमाइंदा ही नहीं है। तो मुज़ाकरात जोक नहीं होना चाहिए, वक्त का ज़या नहीं होना चाहिए, वक्त हमारे पास कम है। लिहाजा संजीदगी से मुज़ाकरात अगर इस पैमाने पे हो कि खुद मुख्तार टीम जो है वो दहशतगर्द ऐलान कर दे और वहाँ पे मुज़ाकरात हो तो फिर ये उम्मीद बनती है कि उसके नतीजे में अमन कायम हो सके और हम इसी मुज़ाकरात के हक़ में हैं। नतीजा खेज़ मुज़ाकरात होने चाहिए और अगर ये नहीं है तो फिर दूसरा रास्ता वही है कि ये तीनों गलतफहमी दूर करके मुअस्सर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई करे। मुअस्सर क्या होता है कि इसमें गुड और बैड का चक्कर नहीं होगा। ये नहीं है कि जो दहशतगर्द मुझे कुछ न है कहे तो गुड, दूसरे को मारे तो वो हमारे लिए गुड। जब हर एक किस तरीके से सोचेगा कि मुझे न मारे दूसरे को मारे वो गुड है, तो कोई ना कोई दहशतगर्द एक को नहीं मारता दूसरे को मारता है। तो जब गुड गुड हो तो बिट तो ख़त्म हो गए, तो फिर दहशतगर्दों को कैसे ख़त्म करना है? लिहाजा ना अमेरिका का गुड है, न पाकिस्तान का गुड है, न अफगानिस्तान का है। दहशतगर्द हैं, ये जानवर हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं और हमें इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी है। अगर ये हुआ तो कार्रवाई के ज़रिए अमन कायम हो सकता है। अगर ये भी नहीं है जो कि इन साथियों ने कहा, अगर ये न हुआ तो फिर मैं आपको गलतफहमी में रखना नहीं चाहता। मैं माजरत चाहूँगा, शौक के मारे बात नहीं की जा सकती। हकीकत यह है कि दहशतगर्दी रहेगी। जब दहशतगर्द होंगे तो लाजमी तौर पे दहशतगर्दी रहेगी। हाँ,
मैं खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत की जानिब से आप लोगों से ये वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि हम पाकिस्तान की बका की जंग हमने लड़ी है और मजीद भी लड़ेंगे, चाहे कोई इससे सुलह करे न करे, दहशतगर्द जैसे भी हो। हमने इनकी नेटवर्क को कमज़ोर किया है, इनकी शिद्दत को कमज़ोर किया है, हमने जानों का नजराना पेश किया है और अपनी मुल्क की बका की खातिर मजीद जो है हम कुर्बानी देंगे, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जिहाद जारी रखेंगे, हम पीछे से किसी तौर नहीं हटेंगे। ये बिल्कुल आप पाकिस्तान से बाहर होते हुए भी उसी धरती के बासी हैं। हमें सबसे पहले अपना मुल्क, उसके बाद दीगर चीज़ें हैं। हम अपने नज़रियात हमारे अलग अलग हैं, लेकिन मुल्क होगा तो हम अपने नज़रियात की बात करेंगे, मुल्क नहीं होगा तो फिर नज़रियात कहाँ होंगे, फिर सियासी पार्टियां कहाँ होंगी। लिहाजा मुल्क सबसे पहले है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना है और उनकी बका की जो है फ़िक्र करनी है। और इस हवाले से मैं तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों से यही इल्तिजा करूँगा कि इस मौके पे जब आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, अगर फिर आप सवाल करें तो मैं जवाब दूँ। दहशतगर्दी मौजू कुछ ऐसा है कि इस पे अगर रातों रात और दिन दिन बात करें तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मैं इसको समेट ही लेता हूँ कि आप ये न समझें कि दहशतगर्दी ने हमें इतना झंझोड़ के रख दिया है कि पाकिस्तान ख़त्म हुआ। खुदा न करे कि ऐसा हो। ये दहशतगर्दी किसी और मुल्क में होता तो वो शायद पाक दुनिया के नक्शे पे ना होता। बड़े से बड़ा मुल्क जितना तवील दौरानिए के लिए दहशतगर्दी रही और जिस पैमाने पे रही कि उनके अपने लश्कर हैं, वो हमले करते हैं, मतवाजी हुकूमतें बनाते हैं, फिर भी हम मुकाबला करते हैं, तो ये तो इस कौम को क्रेडिट जाता है कि दुनिया की तमाम दहशतगर्दों ने उसको मरकज बना लिया। गैर एलान शुद्दा तीसरी आलमी जंग हमारी सरजमीन पे लड़ी जा रही है और हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। और वो आलमी जंग जिसका दुश्मन मालूम हो वो तो बड़ा आसान होता है, वो तो जापान पे एटम बम फेंक दो तब भी वो सुपर पावर बन जाता है। लेकिन हमारा तो घर घर दुश्मन है, गली गली दुश्मन है, पता नहीं चलता कि कौन खुदकुश आके हमें उड़ाएगा, कौन हम पे हमला करेगा। इसके बावजूद हमने हिम्मत से काम लिया है। लिहाजा पाकिस्तान पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत है। मैं सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के हवाले से कि हकीकी मानों में कि पाकिस्तान की इदारे जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत है। आप लोग देख सकते हैं कि पार्लियामेंट पाकिस्तान में कभी पहले ऐसी मजबूत नहीं थी जितनी कि आज है। जब से आई है ये गई और कल गई, जलजला है, हज को लेकर है, लेकिन 4 साल पूरे किए और पार्लियामेंट ने बहुत तारीखी फैसले किए। सबसे ज्यादा तारीखी फैसला जो था वो 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तियारी थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक खामोश इनकलाब है। जहाँ पे आप रहते हैं अलग अलग स्टेट है, उसकी अलग अलग जो है बातें हैं, यहाँ पे कितनी तजादात हैं, लेकिन फिर भी वो कंबाइंड रह रहे हैं। तो अगर हमारे मुल्क में सूबों को पहचान दिया जाए और उनको अपने वसाइल पे इख्तियार दिया जाए तो क्यों नहीं रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। जब नहीं दिया तो पाकिस्तान टूटा, अब सूबों को इख्तियार दिया तो खुदा के फजल करम से आप देखेंगे कि पहले से पाकिस्तान ज्यादा मजबूत होगा और सिर्फ पार्टिसिपेशन का एक तस्वर होगा कि हमारा मुल्क है और हम इसकी खिदमत कर रहे हैं। लिहाजा वो एक खामोश इनकलाब पार्लियामेंट के जरिए आया। नेटो का मसला पैदा हुआ तो पार्लियामेंट ने हल कर दिया। बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि पार्लियामेंट ने खुद हल कर दिए। लिहाजा पाकिस्तान में इससे कबल पार्लियामेंट जो कि इसी सूरत हाल में इतना मजबूत नहीं रहा था जितना कि आज है, और इंशाअल्लाह ये 5वां साल भी पूरा करेगा। दिख के कहते कहते हम इस जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे, डरेंगे भी नहीं और पीछे हटेंगे भी नहीं। और फिर पार्लियामेंट के बाद अदलिया, कल का फैसला भी आप लोगों के सामने है। अदलिया क्यों मजबूत हुआ? अवाम ने तहरीक चलाई, अवाम ने अपना खून दिया तो जजों में भी एतमाद बहाल हुआ, वरना इससे कबल भी तो अदलिया थी। मार्शल लगता ये इंडोर्स कर लेते। नजरिया जरूरत इनकी शब व रोज का मामला था। अदलिया क्यों मजबूत हुआ कि अवाम ने कुर्बानियां दी,
आवाम की खून के बदौलत मजबूत हुआ और आज अदलिया इस पोजीशन में है कि कोई भी फैसला अगर वो करे तो वो कर सकता है। ये मजबूत अदलिया इससे कबल पाकिस्तान में नहीं थी, आज है। इससे कबल इतनी मजबूत हमारे यहाँ पे जो मीडिया को आप देखते हैं, ये पाकिस्तान में कभी इतनी मजबूत मीडिया नहीं थी। एक टीवी था, एक रेडियो था, सब कुछ हो जाता, जो रेडियो बोलता और जो टीवी पे आता बस वही मंजूर था और पता ही नहीं चल रहा था। आज तो बंदा डरता है कि कमरे में कहीं मुझसे खता न हो जाए कि दुनिया को कल को पता चले। आज मीडिया इतना मजबूत है, हमें खुशी है। इसके नेगेटिव पॉजिटिव है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मीडिया के मजबूत होने की वजह से बहुत पॉजिटिव सिमत में हम जा रहे हैं। और फिर मैंने यही कहा कि एक अदलिया जो है वो फौज है, और फौज का मैंने आपको बता दिया कि वो भी पहले के निस्बत जमहूरी अंदाज में सोचता है, पेशवराना अंदाज में सोचता है। लिहाजा हमारी तमाम इदारे जो है पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूत है, लिहाजा पाकिस्तान पहले के निस्बत ज़्यादा मजबूत है। खुदा करे कि ये दहशतगर्दी ख़त्म हो, खुदा करे कि हमारी सरजमीन पे अमन आए। और सिर्फ दुआओं से बात नहीं बनती, खुदा हमें हिम्मत दे के इसका मुकाबला करे, हमें जुर्रत दे के इसका मुकाबला करे। और मैं इन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की, इस पे खात्मा करूंगा कि दहशतगर्दी अब उस जुमरे में नहीं है, वो कारोबार है। एक दहशतगर्दी जो नजरियाती तौर पे उभर के सामने आई थी, अदम तशद्दुद के मुकाबले में तशद्दुद। हमारी अजीब दुनिया है कि अदम तशद्दुद तो एक नजरिया था, लेकिन तशद्दुद कैसे नजरिया बना? लोगों ने तशद्दुद को भी नजरिया बनाया, और ये तशद्दुद आज एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अमन आए भी तो ये आग जो है वो अपना जो उसका जो हीट है वो हम सालों साल महसूस करेंगे, क्योंकि उन लोगों को चस्का लगा है कि लोगों का खून बहाओ तो पैसे कमाओ, स्कूल उड़ाओ तो पैसे कमाओ, मस्जिद उड़ाओ तो पैसे कमाओ, बाजारों में इमाम बारगाहों में खुदकुश धमाके करो तो पैसे कमाओ। और यहाँ तक कि 20 लाख में खुदकुश को फरोख्त किया जाता है। चाहे तुम जिस तरह मिसाइल लोग खरीदते हैं, टैंक खरीदते हैं, खुदकुश को भी खरीदा जाता है। और चाहे तुम उसको कहीं पे भी इस्तेमाल करो, मस्जिद में इस्तेमाल करो, इस्लाम के हक में करो या इस्लाम के खिलाफ करो, तो एक कारोबार की शक्ल अब इख्तियार कर चुका है। इसके लिए हमें बहुत जतन करने हैं, नफ्सियाती तौर पे भी, हमें सलेबस में भी तब्दीली लानी है। ये तालीम की बात इन्होंने की, मैं आपको ये खुशखबरी भी सुनाऊं कि 63 साल में खैबर पुख्तनख्वा में तालीमी महकमे में कभी इतनी तरक्की नहीं हुई थी जितनी कि एक हमारे इस 2-3 साल में हुई। हमारे गुज़िश्ता 63 साल में खैबर पुख्तनख्वा में 3 यूनिवर्सिटियाँ थी, और हमारे 4 साल में हमने मजीद 3 यूनिवर्सिटियाँ बनाई। जितने कॉलेजेस से पहले बने थे उसके बराबर कॉलेजेस हमने बनाए। जितने स्कूल इससे कबल बने थे 63 साल में, हमने वही स्कूल बनाए। हमने इस तरफ तवज्जो इसलिए दी कि फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान का मिशन तालीम फैलाना था। उस ज़माने में 1930 में फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान ने 30 मदरसे खोले थे, सॉरी 100। आज तो स्कूल खोलो कारोबार है। उन दिनों में खोला तो उनको पाबंद सलासल किया गया, उनकी जायदाद जब्त की गई, लेकिन हमारा मिशन था और हम इस मिशन को जारी रखे हुए हैं। तरक्याती काम हो मिसाली हुआ है। सेहत के हवाले से आप बिल्कुल कमी महसूस ज़रूर करेंगे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी काम हुआ है। एग्रीकल्चर में काफ़ी काम हुआ है, और तो और सकाफत में बहुत काम हुआ है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो भी मुझे 1 साल हुआ है दिया गया है। तो हमारे यहाँ सकाफती एक्टिविटीज़ करना बड़ा मसला था। फिर ख़वातीन और मर्दों का इकट्ठा बैठना तो बिल्कुल कुफर गर्दाना जाता था। मैंने 1 साल में जितनी सकाफती एक्टिविटीज़ की वो 63 साल में पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हुई। तो ये हमने सकाफती मैदान में दहशतगर्दी का मुकाबला किया,
हमने खेलों के मैदान में पाकिस्तान में आज कहीं भी नेशनल गेम्स मुनक्किद नहीं कराए जा सकते, हमने पेशावर में मुनक्किद कराए। सैयद आकिल शाह साहब हमारे वहाँ के वजीर हैं खेलों का, और मुझे कहा गया, मैंने वहाँ पे ब्रीफिंग भी दी और कहा कि हम खेल के मैदान से अमन का पैगाम देते हैं, और हमने अमलन करके दिखाए। नेशनल गेम्स के 5,500 खिलाड़ी आए, उसमें से आधे खवातीन और आधे मर्द थे। हमने उनको खेलने का मौका भी दिया, वहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त भी किया, रिहाइश की भी किया, और उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। और फिर आज मैं यहाँ कहता हूँ कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल गेम नहीं होते। मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के हुक्मरान को कह भी चुका हूँ, और अब भी कहता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट कराना चाहते हैं तो मैं पेशावर में मुनक्किद कराने के लिए तैयार हूँ कि वहाँ पे मैं आपको हिफाजत जो है वो मुहैया करूँ। लिहाजा हमने खुदा के फजल करम से इतनी सूरत हाल ज़रूर बदल गई है कि वो मायूसी उस हवाले से नहीं है कि जिस हवाले से हाँ चंद वाक़यात जब आप देखते हैं तो लाजमी तौर पे आप लोगों को मायूसी हुई होगी कि जब बनू का वाक़या हुआ, बनू जेल का, तो लोग सोचते रहे कि ये क्या हुआ। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि जब दहशतगर्द आए सड़क पे और किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका भी नहीं, फिर जेल पे गए तो जेल के इंतज़ामिया ने नहीं रोका, फिर जेल के इंतज़ामिया ने जो बाहर के इंतज़ामिया को बुलाया वो नहीं आए, तो ये दहशतगर्दी का अनोखा वाक़या है। इससे कबल जो भी वाक़या हुआ तो उसका मुकाबला हुआ, या दहशतगर्द मरे या हम मरे, हमने काउंटर किया। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे अपने मामू के घर में बंदा जाता है और फिर लौट के आता है। तो ये दहशतगर्दी का इसमें साजिश जो है इसके पीछे कार फरमा है। हमने तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है, जो भी रिपोर्ट आएगा 15 दिन के अंदर अंदर हम उसी पे अमल करेंगे, और जो भी मोरद इल्ज़ाम ठहरा, लिहाजा आप इस हवाले से दिल न हारें। ऐसे वाक़यात अगर होते भी रहें तो दहशतगर्द होंगे तो होते रहेंगे, लेकिन हम इसका मुकाबला भी करेंगे और इसकी तदारुक भी करेंगे। आप तमाम लोगों का मैंने बहुत वक्त लिया, इसने कहा कि आपके लिए वक्त का कैद नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों ने बहुत सब्र किया, और मैं इस सब्र का इम्तिहान लेते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं देहाती बंदा हूँ, मैं एक गरीब सा बंदा हूँ। इन्होंने तारुफ़ किया तो मुझे अजीब सा लगा कि इन्होंने बहुत बड़े आदमी के हैसियत से मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैं आज अगर वजारत ख़त्म हो तो शायद मेरे पास फिर गाड़ी नहीं होगी कि मैं वापस जाके गाड़ी में घूम सकूं। मैं गरीब सा बंदा हूं, एक पार्टी का वर्कर हूं, और उसकी बदौलत आज मुझे एक मौका मिला है, और उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं कौम की खिदमत के लिए जो भी मुझसे हो सकता है वही मैं कर रहा हूं। और इसी पे आपसे इजाज़त चाहूँगा कि देहाती बंदा ज़रूर हूँ। एक दो औरतों में लड़ाई थी, यहाँ पे हमारे ख़वातीन भी बैठी हैं, तो एक मोटी थी और एक पतली थी। तो पतली ने उससे कहा कि बीबी आप तो बड़ी मोटी हो गई हैं। तो उसने कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है। तो उसने कहा आपको कभी भी एहसास नहीं हुआ? उसने कहा कि एक दफ़ा एहसास हुआ था कि मैंने कपड़े धोबी को धोने के लिए दिए, तो उसने कहा कि मैं कपड़े धोता हूँ, तंबू खेमा नहीं धोता। तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि आप लोगों के बीच में मुझे आना होगा और इतने रोशनियों में बीच में मुझे बोलना होगा। लेकिन जो भी मैं बोला, किसी के दिल को अच्छा न लगा हो तो उसकी माजरत। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी ड्यूटी जो है वो निभा सकूं, और इन्होंने बात की तो मरने से न डरेंगे। और आपकी तसल्ली की खातिर ये मैं ज़रूर कहूँगा, इन लोगों ने मेरे बेटे की बात की तो मैं ये कहता हूँ कि उस धरती के बहुत सारे बेटे शहीद हुए हैं, वो सब के सब हमारे बेटे थे। अगर मैं एक बेटे का रोना रोऊं तो क्या उससे कबल जो मरे वो मेरे बेटे नहीं थे? क्या वो सरजमीन के बेटे नहीं थे? या उस सरजमीन पे हमारी माँ और बहनों के जो दुपट्टे हवा में उड़ाए गए, क्या वो मेरे नहीं थे? जो मेरे आबा अजदाद की पगड़ियाँ उड़ाई गई, क्या वो मेरे नहीं थे? क्या वो मस्जिद इमाम बारगाह मेरी नहीं थी? या वो स्कूल अस्पताल मेरे नहीं थे? क्या वो धरती मेरी नहीं है? लिहाजा मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, ये तो मेरा एक बेटा था, मेरे 10 बेटे होते तो मैं इस कौम पे निछावर कर देता। और वही शेर जो कि
आप लोग अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन जब हकीकी मानों में आपको पढ़ना हो तो बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग कहते हैं कि मौत को तो एक दिन आना है, चाहे तुम कहीं भी रहो मरोगे, बचना तो है नहीं। तो अगर मरना है और उसका वक्त भी मुअय्यन है तो फिर क्यों डरें? डरना किस बात का? जो डरेगा वो हर बार मरेगा, वो लम्हे लम्हे मरेगा। जो नहीं डरेगा वो एक बार मरेगा। हमें कौम की खातिर एक बार मरना कबूल है, बेगैरती की जिंदगी किसी तौर कबूल नहीं। और इसी पे आपसे इजाजत चाहूंगा कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, जिंदगी शम्म के मानिंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह भी कर जाऊंगा। आपने जो कीमती बातें की हैं, कोई शक नहीं इसमें, जितना ज़्यादा आपको फ़िराज तस्लीम पेश किया जाए कम है। आपने कहा कि मैं देहाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर अक्सरियत जो है वो हो सकता है देहाती हो। आपने कहा वजारत ना हो तो मेरे पास गाड़ी नहीं होगी। मैं आपको एक बात यकीन दिलाता चलूँ कि इस वक्त जो कम्युनिटी बैठी हुई है ये माशाल्लाह मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने अपने शोबा जात में ये माहिर हैं। मैं ये यकीन रखता हूँ कि जितने बड़े आप इस वक्त हैं, अगर आपके पास वजारत नहीं होगी तो आप उससे बड़े इंसान जो होंगे, क्योंकि जो खिदमत आपकी इस वक्त मुल्क के लिए हैं, और ख़ास तौर पर अगर मीडिया पर्सन के हवाले से मैं कहूँ तो मैं आपकी कई बातों से जो है वो इख्तिलाफ कर सकता था अगर आप सियासत की बात करते। आपने दहशतगर्दी और पाकिस्तान में अमन के हवाले से जो बातें की हैं, मुझे किसी भी एक बात से भी आपसे इख्तिलाफ नहीं है। और मैं इस बात का यकीन इस कम्युनिटी से भी लेना चाहूँगा कि इनको भी किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ हो सकता ना हो। मैं कम्युनिटी से गुजारिश करूँगा कि मियाँ साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। ऐसे लोग जो है ना, मैं